इट्स अ हाई, मतलब एक्टर के लिए एक बहुत बड़ा हाई होता है जब वो खुद ना दिख के वो कैरेक्टर दिखता है। देखो विलेन जब तक नहीं घुसेगा कहानी आगे नहीं बढ़ेगी। तो अब राजीव खंडेलवाल वाज a very respected officer in the academy, how to take the story forward, how to create masala. You bring in Major Bhargav. I want you to bang the table and tell him. I said, नहीं यार, ऐसा नहीं यार. No, I'm the director. Do it. I said, okay. Then we'll talk about your movie Satyamev Jayate. You played a cruel cop in that movie, and even though you only had like 7 minutes of screen time, your performance was like impeccable. When you get roles like that, how do you prepare for them? Are there any limitation or challenges when you know your screen time is short? You still need to fully establish your character. नहीं यार, सो मिलाप जवेरी वाज द डायरेक्टर ऑफ सत्यमेव जयते. सो मिलाप एंड मी, हमने पहले कुछ काम किया था छोटा मोटा. देन सडनली ही सेज, यार खेरा, दिस दिस वन कैरेक्टर आई वांट यू टू प्ले. तो एज आई सेड, he shared the scene with me and I quite liked the scene. It was very powerful. और फिर it's again film, I want to do a film. So okay. And then Nikhil Advani was a producer, John Abraham. It's a big film and it did well. T Series, I think, was a producer. Yeah, Nikhil Advani and T Series. Yeah. तो वही अगेन कि राजेश खेरा, तू अगर घिनौना इंसान है, करप्ट इंसान है, तो तू ऐसे डायलॉग्स कैसे बोलेगा? तू Hmm. कैसे कैसे पेश करेगा इस कैरेक्टर को? बस Yeah. उतना ही होमवर्क करता हूँ मैं, इससे ज्यादा होमवर्क नहीं करता हूँ मैं. कि अपना अंदर जो, मतलब तू गंदा आदमी है, तू गंदा बन जा. सो और डायलॉग्स इतने सॉलिड थे कि वो घिनौनापन नहीं भी डालो तो डायलॉग्स विल स्पीक द, विल डू जस्टिस टू द सीन. And obviously, director has a way of presenting you, and the scene, then John coming, hitting me, all those things make a lot of difference. Recently, the one which you have done, Swatantra Veer Savarkar, and the Bengal Files. Swatantra Veer Savarkar, you are playing Mahatma Gandhi. Bengal Files, you're playing Muhammad Ali Jinnah. Both are such strong historical personalities, and did you you did an amazing job bringing them to life. How difficult or easy it is for an actor to transform into a character like these, especially when there are so many real life references and public perceptions attached to them, because these are historical characters, right? These historical personalities, sorry. So yeah, you can't go wrong portraying a historical character because there's a lot of footage available. Yeah, yeah. You तो अभी, सो बेसिकली रणदीप हुडा को जब मैं मिला तो इससे, यार तेरे को ना कम से कम 6-7 किलो कम करने पड़ेंगे. ओके, Mm. फॉर द कैरेक्टर. वो खुद उसने Mm. 20-22 किलो कम किए बैठा था फॉर हिज कैरेक्टर, सावरकर्स कैरेक्टर. एनीवेज, तो एक किस्म से चैलेंज था कि बॉस, गांधी का रोल है, और Yeah. एज एन एक्टर इट Mhm. इज वेरी चैलेंजिंग. एंड द वे आई अप्रोच लाइफ इज, बॉस, चैलेंज के बिना मजा नहीं है. Azania. तो लेट्स take the challenge and let's prove yourself worthy of the challenge and let's come out very successful. Anyways, तो ठीक है, मैंने कहा हाँ हाँ मैं करूंगा ना यार, 6-7 किलो. तो एनीवेज वो प्रोसीजर शुरू हुआ, प्रोसेस शुरू हुआ. फिर अभी नाउ, हैव यू सीन द फिल्म गांधी बाय रिचर्ड Yeah, एटनबरो सर? अभी yeah, उसमें एक जेंटलमैन है, सर बेन किंग्सली. ही इज एन एक्टर yeah, हु प्लेड मिस्टर गांधी's कैरेक्टर. yeah. Now I have seen that film 5 times, so I can see it another 5 times. I just love that film. And I love Mr. Ben Kingsley's performance as Gandhi. उनसे अच्छा गांधी शायद ही मिलेगा मार्केट में. मतलब द वे, प्योरिटी, ह्यूमिलिटी, बॉडी लैंग्वेज, द डिलीवरी,
द इनोसेंस, जी। हाँ वो सारी चीजें बेन किंग्सली सर ने इम्बाइब की, और उनका टचवुड वो दिखते भी ऑलमोस्ट 75% गांधी जी जैसे दिख रहे थे फिल्म में। और या। मेकअप है, और जो भी है, डायरेक्टर ऑब्वियसली इज टू बी सैल्यूटेड। तो मैंने सिर्फ उनको ही कॉपी किया। आई डिड नॉट गो एंड सी गांधी जी की रियल फुटेज ऑन यूट्यूब। आई हार्डली सॉ। ओ। मैंने कहा यार, बेन किंग्सली सर कैसे परफॉर्म करेंगे ये सीन। जी मैंने जी सिर्फ जी। उनको अपने दिमाग में रखा कि मेरा जो सीन है, अगर बेन किंग्सली सर ये परफॉर्म कर रहे होते तो उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या होती, उनका स्टाइल ऑफ डिलीवरी क्या होता, उनके बॉडी बॉडी एक्शंस क्या होते। तो बस अपने आप को मैंने कहा, देख तू बहुत ही प्योर इंसान है। तो अपने आप में जितनी प्योरिटी थी, मैंने उस प्योरिटी को निकाला। बाहर निकाला। और बेन किंग्सली सर का मैंने पूरा दिमाग में रखा कि तू इस वक्त बेन किंग्सली है। तो दैट वाज माय प्रिपरेशन फॉर गांधी। एंड रणदीप हुडा डेफिनेटली ही इज मेड अ वेरी गुड फिल्म। तो एज अ डायरेक्टर ही वाज वेरी क्लियर, उसको ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। एंड द मेकअप टीम, रेणुका पिल्ले, शी इज द हेड ऑफ द मेकअप टीम। एंड जितेंद्र म्हात्रे, जीतू म्हात्रे वी कॉल हिम, ही इज द प्रोस्थेटिक्स, जिन्होंने मुझे यस। बूढ़ा बनाया, ऑल दोज मेकअप किया। तो सारी चीजें, इट वाज इरिटेट गुड। करता है जब ऐसी चीजें, ट्रांसफॉर्मेशन जब चल रहा होता है, लाइक हाउ डू यू मैनेज टू स्टे काम एंड व्हेन यू नो दे आर यू ट्रांसफॉर्मिंग यू इनटू दैट कैरेक्टर, व्हेन द मेकअप, लाइक बिकॉज दैट्स नॉट अ नॉर्मल मेकअप, there's a layer that's being put on you once the you know filming is done, वो निकाला जाता है, so नाउ इफ यू प्लेइंग गांधी, यू हैव टू बी काम। ओके। सो कहने का मतलब यार, कीपिंग दैट असाइड, 2 घंटे, 2.5 2 2.5 घंटे भी लग जाते थे मेकअप में। ओके। और फिर उसको उतारने में आधा घंटा लग चला चला जाता था। yeah. तो इनफैक्ट इट्स अ हाई, मतलब एक्टर के लिए एक बहुत बड़ा हाई होता है जब वो खुद ना दिख के वो कैरेक्टर दिखता है, Yeah. कि ट्रांसफॉर्मेशन। तो उसमें जो, और एक बार वंस यू स्टार्ट लुकिंग द कैरेक्टर, वो ना Yeah. एक्टिंग एक्टिंग इजी हो जाती है। जी जी। इफ यू लुक द कैरेक्टर, योर 65% ऑफ द जॉब इज डन। बाकी 35% तो एक्टिंग कर ले। तो इट इज लाइक दैट। जी। अभी जिन्ना, जिन्ना का या। जो मेरे को लुक दिया था। जी जी। Now, yes, so whatever little I saw footage of, I saw Mr. Muhammad Ali Jinnah on YouTube. Now, Mr. Jinnah spoke very slowly. He was, I think, slower than Mr. Atal Bihari Vajpayee. जब भी वो बात, वाजपेयी जी भी जब बात करते थे तो बहुत समय लेते थे। तो जी जी। इवन जिन्ना, जितनी भी फुटेज मैंने देखी, वो बहुत ही स्लो बात कर रहा था। तो मैंने कहा यार, ये तो बहुत बोरिंग हो रहा है यार, ये तो फिर मैंने डायरेक्टर विवेक से पूछा कि भाई कैसे। इसे नहीं नहीं, वो फिल्म खत्म हो जाएगी तू बोलता रहेगा मतलब व्हाट द हेल। एनीवेज। तो तो क्योंकि जिन्ना साहब की ज्यादा फुटेज नहीं है अवेलेबल, जी जी। तो एक किस्म से जिन्ना का एटीट्यूड पकड़ा है कि जिन्ना ओके। लुक्स डाउन ऑन गांधी। ही इज जेलस ऑफ गांधी बिकॉज ही, उसको काफी भाव मिलता था जब वो कांग्रेस में था। गांधी के आने के बाद उसको कोई भाव नहीं देने लगा। तो ही इज जेलस एंड ईगो, ही इज वेरी ईगोइस्टिक। और पता नहीं और क्या क्या वजह से ही डिसाइडेड कि नहीं, मुझे अलग मुस्लिम स्टेट चाहिए। एनीवेज, तो ये सारी चीजें दिमाग में रखी कि भैया ठीक है, लेट्स फर्स्ट नाउ लुक एज क्लोज टू मिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना। वो विग विग आई, मेकअप आया, कपड़े आए, फिर उसमें मैंने अपना एटीट्यूड डाला, ईगो डाला, गांधी के लिए हेट डाला, कांग्रेस के लिए हेट डाला, मेरा खुद का मकसद है, आई वांट टू बी बिगर देन गांधी। ये सारी चीजें डाल दी, और फिर आगे जाके सीन किया। समझ रहे हो?
कॉन्ट्रडिक्शन। आप महात्मा गांधी प्ले कर चुके थे, फिर आप जिन्ना प्ले कर रहे हैं, तो आप निकल चुके हो कैरेक्टर से, ऑफ कोर्स महात्मा गांधी के, और आप अब जिन्ना प्ले कर रहे हो। बट आप अब उसके लिए हेट्रेड ला रहे हो, तो कुछ एक आता नहीं होगा कि आई जस्ट प्लेड गांधी लाइक few months back. Now I'm playing this guy who hates So Mahatma for your Gandhi. for your information, I'm playing Mr. Jawaharlal Nehru in the next film, directed by Anand Madhavan sir. He's making a Marathi film on a saintly person called Tukoji. Anyways, तो अच्छा। उसमें Anand sir is making me play. He's selected me to play Jawaharlal Nehru. So I will say अब क्या बात है, गांधी भी हो गया, जिन्ना भी हो गया, नेहरू भी हो जा रहा है। तो वो अच्छी बात है ना, अच्छी। कहने का मतलब है अपने आप को शाबाशी देता हूँ कि यार क्या एक्टर है तू। आप तो नॉर्मल हो। इसमें आप आपके खुद के व्यूज कभी नहीं आते होंगे? कभी आप कुछ आपके खुद के कोई व्यूज हैं और आप कोई कैरेक्टर प्ले कर रहे हो, क्या उससे कभी कॉन्फ्लिक्ट होता है कि कभी आपके खुद के थॉट प्रोसेस से लाइक यू आर अनएबल टू कन्विंस योरसेल्फ कि यार ये कैसे करूं, क्योंकि आई डोंट आई एम नॉट कन्विंस्ड बाय दिस हाँ यू नो हाँ, वो हुआ। वो गांधी गांधी में हुआ था सावरकर में हुआ था। तो रणदीप डायरेक्टर से इस यहाँ पे ना, तो you'll get very angry. I said यार okay, I will get angry, Gandhi will get angry, but Gandhi, if Gandhi is angry, then उसका he will not raise his voice. या So then that is my approach to Gandhi. I said नहीं नहीं, Ben Kingsley will not raise his voice, and Ben Kingsley will say it very sternly. But then या Randeep is not, I'm the director, you do what. तो वहाँ कहीं ना कहीं एज अ एक्टर यू हैव टू सरेंडर। या समझ रहे हो? डायरेक्टर हैज अ बिगर पिक्चर। उसने या ही डन अ लॉट ऑफ स्टडी। उसको क्लियरली पता है क्या नहीं है। तो at times you have to surrender. So there was a time when Vivek wanted Jinnah to be very disrespectful towards Gandhi. So then at that time I said नहीं यार, Jinnah ठीक है, he does not like Gandhi, but मतलब इतना भी नहीं कि घर बुला के उसकी इतनी वो इंसल्ट करेगा। तो एंड देन आई वांटेड टू डिलीवर अ लाइन। वो एक लाइन है उसमें, यू गांधी सेज यू हैव समथिंग समथिंग टू द मुस्लिम्स, या और जिन्ना बोलता है एंड यू हैव हिप्नोटाइज द हिंदूज। ठीक है। तो या यहाँ पे आई जस्ट वांटेड टू प्लेनली डिलीवर। अनुपम सर कहते हैं कि देखो जिना, एक बात जो भी है, लेकिन तुमने मुसलमानों को मिसलीड किया है। एंड या आई वांटेड टू से अगर मैंने ऐसा किया है तो तुमने हिंदूज को हिप्नोटाइज किया है। जी बट विवेक सेड नो, आई वांट यू टू बैंग द टेबल एंड टेल हिम एंड यू हैव हिप्नोटाइज्ड द हिंदूज। आई सेड नहीं यार, ऐसा नहीं यार, नो आई एम द डायरेक्टर, डू इट। आई सेड ओके। एक थोड़ा पर्सनल क्वेश्चन आपके लिए। You are very well known and respected actor. People really admire your work, and you seem to prefer stay very low key. And today, when social media is important for visibility, casting, do you feel it creates any challenges for you, even though you're already established in the industry? Uh, what do you think about this? ये मेरे को सोशल मीडिया एक्चुअली ज्यादा समझ में आया नहीं है। और इट्स अ टॉर्चर फॉर मी टू मेक अ रील एंड टू बड़ी पुट इट ऑन सोशल मीडिया। इट्स नॉट माय स्टाइल। हालांकि मैं कभी कभी करता हूँ, लेकिन मैं वो रील बनाता हूँ जो एक अंदर से ऑर्गेनिकली आती है, होता है। आवाज आती जी है कि हाँ यार, इसको कैप्चर करते हैं, इसको जी शेयर करते हैं। जी जस्ट फॉर जस्ट फॉर क्या बोलते हैं, इंक्रीजिंग योर फॉलोइंग, वो मुझसे नहीं होता है।
आपका शो था लेफ्ट राइट लेफ्ट, व्हाट डू यू रिमेंबर वर्किंग ऑन दैट शो, बिकॉज इट हैड दिस बिग यूथ फॉलोइंग एंड बहुत बहुत लंबा चला था, 2 साल चला था ये शो, और आप उसमें भी आई थिंक एंटागोनिस्ट प्ले कर रहे थे, और व्हाट डू यू रिमेंबर मोस्ट अबाउट वर्किंग ऑन दैट शो? So after doing जस्सी जैसी कोई नहीं मैडी, तो 4-5 साल के लिए मेरे पास सिर्फ मैडी जैसे रोल आने लगे। ओके। और मैं सबको मना करने लगा, मैंने कहा भाई मतलब क्या, और भी तो मेरे में हुनर है, ये सिर्फ मैडी थोड़ी करूंगा मैं। तो सेम प्रोड्यूसर टोनी एंड दिया, दे वर मेकिंग लेफ्ट राइट लेफ्ट, एंड दे कास्ट मी एज मेजर भार्गव। कि इनफैक्ट आई हैड शेयर्ड विद टोनी एंड दिया, ऐसे यार मैडी मैडी हो रहा है, डोंट वरी, विल गिव यू रोल, विल ब्रेक दैट इमेज। तो इनफैक्ट बचपन में ऑल्सो आई वांटेड टू बी अ फौजी। तो पूरा जो कीड़ा था फौज में घुसने का, फौज फौज का यूनिफॉर्म, फौज की लैंग्वेज, फौज का जो भी, सो वो सारी चीजें मैंने उस कैरेक्टर में डाल दी, टू द एक्सटेंड दैट मेरे को बेस्ट एक्टर अवार्ड भी मिला है नेगेटिव रोल। Solid energy, yeah, those boys and the cadets, and the fact that uh, I am so-called the bad man, like everybody is positive, everybody, अभी देखो विलेन जब तक नहीं घुसेगा कहानी आगे नहीं बढ़ेगी। जी। ओके। तो अब राजीव खंडेलवाल was a very respected officer in the academy and everybody would look up to him. So then obviously now how to take the story forward, how to create mischief, how to create masala. So मसाला। you bring in Major Bhargav. या। एंड ऑब्वियसली फिर मेजर भार्गव और राजीव के कैरेक्टर के साथ डेफिनेटली कहीं ना कहीं अनबन दिखाई गई है। एंड मेजर भार्गव इज ऑलवेज ट्राइंग टू प्रूव हिमसेल्फ बेटर देन राजीव्स कैरेक्टर, and then obviously he wants, somewhere deep inside, he's also a true army man. He wants the cadets to really be disciplined and to या। turn out as proper officers who can tolerate, who can be the best. And to be the best, you have to be hard on yourself. And his no leniency. So all those, so वाह, और नेगेटिव रोल में बहुत अच्छा कर लेता हूँ यार। एटीट्यूड तो मेरे को बहुत दबा के फेंकना आता है। तो बट इट ये वाज गुड। शोज जो थे, जैसी जैसी कोई नहीं और लेफ्ट राइट लेफ्ट, आई थिंक ये आपका एक खत्म हुआ दूसरा शुरू हुआ, तो ये दोनों ही शो काफी काफी पसंद किए गए थे। थैंकफुली थैंक्स टू टोनी एंड दिया, जिन्होंने मेरे को मैडी भी दिया, जिन्होंने मेजर भार्गव भी दिया, टू प्रूव माई सेल्फ एज एन एक्टर कि देखो ये राजेश ये भी कर सकता है, राजेश ये भी कर सकता है। तो अब तो I am only grateful to my producers and my director Rahib on Left Right Left, who really helped me bring out Major Bhargav, and Mr. Vikas Behel, who was then with Sony. He was the man behind the show. You can call him a showrunner. Yeah. So in fact, Vikas sir was so impressed with my performance, क्योंकि मेरे कैरेक्टर को दिखाया गया है कि ये टॉम एंड जेरी देखता है। तो विकास सर हैड प्रेजेंटेड मी विद अ सीडी, जब सी कॉम्पैक्ट डिस्क हुआ करती थी, वी 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 जी सी जी जी डीवीडी, जी। सॉरी डीवीडी डीवीडी, डीवीडी। उन्होंने मेरे को टॉम एंड जेरी का डीवीडी प्रेजेंट किया था। सो ही लाइक माय कैरेक्टर सो मच। जी। Anyway, सो so बस I'm hoping Vikas sir will use me very soon in his next forthcoming film. So yeah, fingers crossed. कोई एक प्रोजेक्ट जो आपके दिल से बहुत क्लोज हो, और व्हाट आर योर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स, तो ये 2 क्वेश्चंस हैं। देखो, आई एंजॉयड प्लेइंग जिन्ना अलॉट यार। मजा आया जिन्ना को, लाइक आई वाज लुकिंग सो गुड, एंड आई हैड सीन्स विद मिस्टर अनुपम खेर, एंड अनुपम खेर सर मैंने मेरी बहुत तारीफ की कि क्या मस्त मस्त परफॉर्मेंस दे रहा है तू। और बहुत ही बड़े तरीके से उसको शूट किया गया था। वो बात दूसरी है कि उसकी बदौलत कुछ काम नहीं मिला मेरे को। एक फिल्म थी वो,
चैन कुली की मैन कुली. Chain Gully, Main Gully, yeah. Okay, I played What? a orphanage ka warden, very ugly, bad warden. That was fun because a bunch of kids full of energy, and you are the bad man, you bloody basket, nice lines and all that. So that was fun. Jussie was fun. So ऐसे, in fact, left, right, left was fun. But ऐसा कुछ नहीं, ऐसा एक कुछ नहीं particular. रे. I'm not a very attached person to. I'm a very detached To person. any upcoming projects अपकमिंग प्रोजेक्ट तो सिर्फ यही है, जो आप एक बता फिल्म. सकते हो अभी? हाँ, बस वही एक, अगेन अ कैमियो प्लेइंग मिस्टर जवाहरलाल नेहरू इन अ मराठी फिल्म विद आनंद महादेवन एज द कैप्टन of the film, and the film is called Tukoji Maharaj. It's on somebody as saintly as Mr. Gandhi, Mahatma Gandhi. तो बाकी मैंने कोई होमवर्क नहीं किया. चलो ठीक. Let's start with 90s rapid fire. Favorite 90s Bollywood actor and actress? हाँ, मिस्टर आमिर खान एंड क्या प्रीति, व्हाट्स her name? Shit, I forget her name. Preeti Zinta. Preeti Zinta. Preeti Zinta. Correct, Uh, correct. Yes. favorite Bollywood song from the 90s? अरे बाप रे, सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन है. अपुन बोला तो मेरी लैला, Oh, वो बोली फेंकता है साला. were you there in the अपुन song? Yeah, I was there, पीछे कहीं था. हाँ. Favorite 90s TV show? टीवी ज्यादा देखा ही नहीं यार. स्वाभिमान, स्वाभिमान. Favorite 90s ad or commercial? So वो वाला छोड़ के बोलना है अगर कैडबरी, आपका. कैडबरी, वो कैडबरी, Cadbury. the girl coming into the stadium and dancing. Any favorite 90s dialogue you still remember? डायलॉग. सर डायलॉग तो अरे बाप रे. याद सर, शाहरुख अरे, खान के, आमिर खान के, सलमान खान के, इतने भर भर के डायलॉग, सर एक तो होगा. अरे वही ना, आई एम द रॉन्ग पर्सन हु बिलोंग्स टू दिस इंडस्ट्री. वन ऑफ द मोस्ट इग्नोरेंट. सर शाहरुख खान का याद है? नहीं, आई रिमेम्बर बच्चन साहब के डायलॉग है, मतलब गब्बर चलिए सिंह. सब बोल लीजिए. तो 70s कितने आदमी थे. वन थिंग यू विश कुड कम बैक फ्रॉम द 90s, अगर कोई एक चीज है कि आपको लगती है ये चीज वापस आ जाए 90s से, ये कोई एक ऐसी चीज थी जो ऑथेंटिसिटी है जो. आई विश ये मोबाइल फोन का इन्वेंशन नहीं होता. आई विश. वार्ड लगा दिया मोबाइल फोन ने. अच्छा भी, मतलब ज्यादा, ज्यादा तो अच्छा ही है. मतलब हाँ, जो बुरा है वो तो बहुत ही बुरा है. साधारणता थी ना, या सिंप्लिसिटी. जी वो चली गई है, वो यार इस मोबाइल कल्चर ने ना वो वाट लगाती है. वाट लगा दी है. सिंप्लिसिटी ठीक है, सब कुछ अपने समय से होता था. या प्यार मोहब्बत, मतलब इट वाज नाइस. आई एम अ वेरी ओल्ड स्कूल गाय. या इनफैक्ट टॉम ऑल्टर एक्टर हुआ करते थे, वो टिल हिज डेथ ही नेवर या नेवर हैड अ नेवर हैड अ मोबाइल. या इनफैक्ट आई एम टोल्ड मिस्टर Rajat या Kapoor, या he also does not carry a mobile. He only checks his mails. Because I was told जब सारे जहां से अच्छा में वो थे, तो जी. प्रोडक्शन प्रोडक्शन वाज थिंकिंग, अरे यार वो लैंड करेंगे नहीं करेंगे, मोबाइल है नहीं, हमने तो जो मेल भेजा था उनको. तो वो अभी भी, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, वो अभी भी उनके पास मोबाइल नहीं है. सर इट वाज लवली स्पीकिंग विद यू टुडे, आई लर्न सो मच फ्रॉम यू. आपसे बात करके ना बहुत अलग सी फीलिंग आई, क्योंकि काफी एक्टर्स बात करने का अलग तरीका होता है, आपका थोड़ा एक अलग तरीका है. आपसे बात करते करते बहुत कुछ सीखा आपके बारे में. आई होप यू कीप एंटरटेनिंग अस, इंस्पायरिंग अस लाइक यू ऑलवेज हैव. यस, सच अ ग्रेट एक्सपीरियंस स्पीकिंग विद यू सर. ओके, इफ यू इंसिस्ट. ओके, चलो. गुड लक टू यू टू.